Jai Gurudev students. Students, today we will study the same chapter, that is the forms of market. In this forms of market, you have studied that there are two types of market, perfect competition and imperfect competition. दो तरह के market होते हैं, एक perfect competition और एक imperfect competition. Perfect competition, you have studied that where there is a large number of buyers and sellers and they are selling homogeneous product. And in imperfect competition, I have told you that there are different forms of market. There like monopoly, monopolistic, and oligopoly. Monopoly and monopolistic, I have explained you in short that it is not in your syllabus now. Oligopoly market. Oligopoly market, you know student, that they are the this type of market. There are few big firms and the large number of buyers are there. मीन्स इस तरह के मार्केट में जो है वो बिग फर्म्स होती है लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड नंबर में होती है. मीन्स देयर इज द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर देयर लेकिन वो बहुत कम होती है. सो इन दिस टाइप ऑफ मार्केट देयर आर ओनली फ्यू बिग फर्म्स आर देयर इन द मार्केट बट बायर्स आर मेनी एंड there is a cutthroat competition among the sellers, that is they are limited in number. तो आपस में उनके बीच में बहुत ज़्यादा competition होता है and they are dependent or interdependent on each other. That is they are having a huge competition between them and this competition is also known as cutthroat competition. So what is oligopoly? Oligopoly means it is a form of market in which there are a few big firms and large number of buyers in the market. Few big firms means limited number of buyers firms are there and buyers are many. Buyers तो बहुत सारे होते हैं. Large number of buyers are there but there are limited number of firms is there and there is a limited number of firms are there, so they are having a huge competition among them. आपस में उनके बीच में बहुत ज़्यादा competition होता है. They are having cutthroat competition among them and they are interdependent on each other. That is the working of one firm will affect the working of another. आपस में उन लोगों के बीच में आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं कि अगर एक फर्म पैसा कम करती है, प्राइस कम करती है, तो उससे दूसरे फर्म पे भी इफेक्ट पड़ता है और इसीलिए इनके बीच में आपस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है. सो इन द ओलिगोपॉली मार्केट देयर इज अ फ्यू बिग फर्म्स आर देयर इन द मार्केट बिकॉज ऑफ ह्यूज इन्वेस्टमेंट एंड द लार्ज नंबर ऑफ बायर्स आर देयर. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ओलिगोपॉली मार्केट? सो फीचर्स ऑफ ओलिगोपॉली market. First is small number of big firms. Small number of big firms, you know student, that यहाँ पर जो इस तरह के मार्केट में बिग फर्म्स होती है, बड़ी बड़ी फर्म्स होती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, लेकिन दे आर इन स्मॉल नंबर, बहुत ही कम नंबर, लिमिटेड नंबर में होती है. एंड देन इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. बायर्स आर मेनी. बायर्स तो बहुत सारे होते हैं. दे आर बायर्स आर लार्ज इन नंबर एंड बट द फर्म्स आर लिमिटेड इन नंबर. एंड थर्ड इज इंटरडिपेंडेंसी among the firms. There is a interdependency among the firms means आपस में फर्म एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड होती है. अगर एक भी फर्म कुछ भी करती है तो उसका इफेक्ट दूसरी फर्म पे भी पड़ता है. सपोज इफ वन फर्म इंक्रीज द आउटपुट द अदर इट विल हैविंग द इफेक्ट ऑफ अदर फर्म आल्सो. इफ वन फर्म विल चेंज द प्राइस तो इट विल आल्सो हैव द इफेक्ट ऑन अदर फर्म. जैसे मान लीजिए अगर एक फर्म प्राइस कम करती है तो उसका इफेक्ट उसकी दूसरी फर्म पे भी पड़ता है, उसको भी प्राइस करना पड़ता है. And suppose if another firm also decrease the price for selling more goods, so it will create the huge competition among them. It will create the cutthroat competition among them. और इससे क्या होगा कि दूसरी फर्म और ज़्यादा कम करेगी तो इससे सभी को लॉसेस होगा. दैट मीन्स एक फर्म की वर्किंग जो होती है, एक फर्म का कोई भी अपनी प्रोडक्शन में एक्सपेंशन, क्वांटिटी में एक्सपेंशन करना या प्राइस में चेंज करना, इससे दूसरी फर्म पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. दैट इज दे आर हैविंग इंटरडिपेंडेंसी. देयर इज अ इंटरडिपेंडेंसी अमंग द फर्म्स. नेक्स्ट इज and it is difficult to determine firms demand curve. ओलिगोपोली मार्केट में जो है फर्म्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है and if the one firm changes the price the other firm also change the price and it will affect the working of the each and every firm. So there is a difficult to determine the firm's demand. इस तरह के मार्केट में
फर्म के डिमांड कर्व को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. वी कैन नॉट से दैट देयर इज एन एग्जैक्ट डिमांड कर्व. देयर इज अ इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व इन ऑलिगोपॉली मार्केट. यहाँ पर जो डिमांड कर्व होती है, जो प्राइस कर्व होती है, वो फिक्स नहीं होती. Just like in perfect competition, we are saying that there is straight line demand price curve या demand curve is there, and the monopoly and monopolistic market downward sloping is there. That means कि अगर producer अगर जाता है ज़्यादा selling करना तो he will decrease the price. लेकिन यहाँ पर oligopoly में कोई fixed demand curve नहीं है. Why? Because of interdependency among the firms. If one firm change the price, तो other firm may also change. अगर एक फर्म प्राइस कम करती है तो दूसरी और प्राइस कम कर देगी, तो फिर तीसरी और ज्यादा कम कर देगी. इससे फर्म्स के बीच में ही आपस में ही कंपटीशन होने लगता है एंड दे आर सफरिंग लॉसेस. सो दैट इज व्हाई वी कांट से दैट देयर इज अ फिक्स्ड डिमांड कर्व. इसीलिए इस तरह से यहाँ इस तरह की फर्म में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द फर्म्स डिमांड कर्व, और आइदर यू कैन से दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस द फर्म्स डिमांड कर्व. यहाँ पे कोई फिक्स्ड डिमांड कर्व नहीं है. नेक्स्ट इज non-price competition. So in this type of market there is a huge competition among the firms. So to avoid the huge competition, to avoid the price competition, the firms are using नॉन प्राइस कंपटीशन. तो यहाँ पर अगर फर्म अपनी प्राइस अपने सेलिंग बढ़ाना चाहती है तो इंस्टेड ऑफ प्राइस कंपटीशन दे विल फोकस ऑन नॉन प्राइस कंपटीशन को ज्यादा फोकस करती है, और इससे यहाँ पर नॉन प्राइस कंपटीशन भी होता है. क्योंकि अगर एक फर्म ने प्राइस कम किया ताकि उसकी गुड्स की सेलिंग बढ़े तो दूसरी फर्म और ज्यादा कम कर देगी. इससे दोनों को ही लॉस होगा और इससे दोनों में ही नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे. दैट इज वाई इंस्टेड ऑफ प्राइस डिक्रीजिंग और प्राइस चेंजेस द फर्म्स आर टेकिंग नॉन प्राइस कंपटीशन. नॉन प्राइस कंपटीशन यू नो कि अगर हम किसी कोई फर्म अपनी सेलिंग बढ़ाना चाहती है तो वो प्राइस कुछ कम नहीं करती है, बल्कि कुछ दूसरी एक्टिविटीज करके या दूसरे तरह से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करके, जस्ट लाइक मोर एडवर्टाइजमेंट विल बी देयर और आइदर गिफ्ट्स विल बी देयर लाइक बाय वन गेट वन ऑफर्स आर देयर, एंड ऑल्सो आफ्टर सेल सर्विस or so many other kinds of non-price competition will be given to the customer, so they will attract to that customer. मतलब यहाँ पर कस्टमर्स को ऑफर्स दे करके, कस्टमर्स को प्राइस दे करके या कुछ इस तरह से कोई अच्छा काम करके पब्लिक के लिए, जिस तरह से लोग उससे अट्रैक्ट हो उस फर्म के लिए, तो यहाँ पर फर्म्स आर हैविंग नॉन प्राइस कंपटीशन. दे आर फॉलोइंग नॉन प्राइस कंपटीशन. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल. फर्म्स आर इन दिस टाइप ऑफ मार्केट आर फॉलोइंग कार्टेल. आपस में यहाँ पर फर्म्स के बीच में बहुत ही ह्यूज कंपटीशन होता है. दैट मीन्स अगर वो एक दूसरे से कंपटीशन करेंगी तो देयर विल बी अ लॉस ऑफ ईच एंड एवरी फर्म. सो इंस्टेड ऑफ हैविंग कंपटीशन विद ईच अदर दे आर फॉलोइंग नॉन प्राइस कंपटीशन एंड ऑल्सो दे विल फॉर्म द कार्टेल. कार्टेल का मतलब है कि आपस में अलग अलग रह के काम करने के बजाय आपस में मिल करके काम करें. दे विल मेक द ग्रुप, दैट ग्रुप इज नोन एज कार्टेल. वो ग्रुप बना के काम करेंगी एंड दैट ग्रुप विल बी they are taking collective decision instead of taking independent decision. They will take the decision in having means they are taking the decision of each and every person, and then one of the person should be the leader of that cartel and he will take the decision, and then other firms are also following that. तो कार्टेल में they will decide कि कितना उनको प्रोडक्शन करना है, क्या प्राइस रखने हैं, और वो ग्रुप का जो भी डिसीजन होगा वो पूरी फर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा. तो यहाँ पर फर्म्स जो है कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए दे कैन मेक द कार्टेल ऑल्सो. So instead of having competition, the firms are making the non-price competition also. That is, they are making cartel, and also they are not having competition with each other. They will not contact with each other. Now इस तरह से ये देखिए यहाँ पर big firms होती है, लेकिन there is small number. Non-price competition is there. Then formation of cartel, and then last is entry barrier. Entry barrier is there. There are few firms are there या few number of small firms are there. क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ entry barrier, there is not a free entry to exit. यहाँ पे restrictions है. Now restrictions is what kind of restriction are there? The restriction is of huge investment. Because to enter in this type of firm, the person needs huge investment. Heavy investment is needed. If the person is not having that much of capital, so he will not enter in this type of market. तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, एंड दैट इज वाई ह्यूज, and because of huge investment their entry barrier, there is a less number of firms are there. And the next will be not only huge investment but the patent rights is also there.
patent rights, copyrights, these are kinds of the barriers are there. Patent rights, कि जब भी कोई new product introduce होता है, means if there is any innovation of the new product, so that product will be produced by some firm, so that firm will take the patent rights from that firm so that he can produce the goods. मीन्स अगर कोई भी नया प्रोडक्ट जो इन्वेंट होता है और उसको प्रोडक्शन करने के लिए फर्म को पेटेंट राइट्स लेना जरूरी है उस पर्टिकुलर फर्म से जिसने ये गुड्स को इनोवेट किया है. सो इन द एब्सेंस ऑफ पेटेंट राइट्स ही विल नॉट प्रोड्यूस द गुड्स. अगर उसके पास पेटेंट राइट्स नहीं होंगे तो वो गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकती. तो पेटेंट राइट्स अगर नहीं है तो आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, आप इस तरह के मार्केट में नहीं आ सकते. तो देयर इज अ काइंड ऑफ एंट्री बैरियर्स आर देयर, लाइक ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज नीडेड, पेटेंट राइट्स इज नीडेड फॉर सम प्रोडक्ट्स. तो ये दीज आर द फीचर्स ऑफ ओलिगोपॉली मार्केट. ये ओलिगोपॉली मार्केट्स के ये फीचर्स हैं कि जैसे इसमें स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म्स होती है, बायर्स आर मेनी एंड दे आर हैविंग इंटरडिपेंडेंसी अमंग द फर्म्स. फर्म्स एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंट रहती है. दे आर हैविंग कट थ्रोट कॉम्पिटिशन अमंग देम एंड द फर्म्स डिमांड का इज इनडिटर्मिनेंट. फर्म की डिमांड का फिक्स नहीं है. इनडिटर्मिनेंट है मतलब कि हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर अगर प्राइस फर्म्स को अगर सेलिंग बढ़ानी तो वो अपना प्राइस कम करेंगे. नो, it is not that कि क्योंकि if one firm is reducing the price, other firms may also reduce the price. So in this way they are having huge competition. So the next feature is non-price competition. Firms are following non-price competition to increase the sale instead of focusing on price competition. And then formation of cartel. Cartel is there to avoid competition. कंपटीशन को दूर करने के लिए फर्म्स आपस में कार्टेल बना के रहती है. कार्टेल बना लेके ग्रुप बनाती है, ग्रुप के साथ मिलके काम करती है एंड दे विल टेक कलेक्टिव डिसीजन रिगार्डिंग प्राइस, रिगार्डिंग आउटपुट. So the firms are following cartel in this type of market. Then entry barriers are there. यहाँ पर लिमिटेड फर्म्स हैं और लिमिटेड फर्म्स का रीजन है कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज नीडेड. लार्ज फर्म्स जो होती है, लार्ज कैपिटल, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, दे नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो कि एवरीबडी इज नॉट एबल टू अरेंज एंड दैट इज वाई देर आर लिमिटेड नंबर ऑफ फर्म्स आर देयर. तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट एंड पेटेंट राइट्स आर द एंट्री बैरियर्स इन दिस टाइप ऑफ market. So these are the features of oligopoly market.